A very good morning to all. We warmly welcome you on to the second day of the International Conference on Tribes in Transition, Indigenous Cultures in the Digital Era, organized under the aegis of the Department of English, Jamia Millia Islamia. After such enlightening and enriching sessions that we had yesterday with erudite speakers like Padam Shri, Professor Anvita Abi, Professor Asaduddin, Dr. Anderson, Professor Mahanand, Professor Acharya, we move forward to today's session with the same zeal and curiosity. Before I move on with the proceedings of this session, I would like to give some pointers regarding the functioning of the conference. So the session is being recorded as well as live streamed on YouTube, and a request to all the participants to kindly post their queries in the chat box. Our volunteers will address the questions at the end of the session. And I request the chair of our session to time the session as per schedule. And as chair, you may summarize the presentations in brief for further discussion. And the rapporteurs for this session are Anab Nair and Aditi Das Khan. So before I introduce the theme and chair of the session, I would like to invite the convener of the conference, Dr. Ivy Hansa, to welcome our speakers. Ma'am, please. Thank you. जोहार टू ऑल ऑफ यू. जोहार एक ग्रीटिंग है, हम लोग झारखंड में यूज करते हैं. इट मींस नमस्ते और गुड मॉर्निंग. सो जोहार. आप तीनों हमारे जो स्पीकर्स हैं और हमारे चेयर, और ये एंड इट प्लीजेस मी अ लॉट. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर. यस, इज देयर सम नॉइज? Oh, I think Shamla ma'am was saying something. Okay. So I'll continue. So it gives me great pleasure to invite the participants of the next session, and these are all from the Jharkhand area. One is working in IGNOU, while the other two are from Eastern India. One is in Bengal, and the other one is from Ranchi, and the chair also is from Ranchi. And they are all people who are, two of them are grassroots workers, and they have been involved with the issues, the problems that we talk about academically, on a textual level. But they are people who have been involved with this. So they are, I think, the right people to give us a lot of very interesting inputs on the problems that are facing tribals today. So therefore, I will now ask them. And yes, another thing I would like to say is that this is a bilingual session, and therefore some of the presentations will be in Hindi, but I think the others will be in English. And I've also told them to use some English words here and there, and to speak also in mixed. So therefore, ये सबके लिए maybe थोड़ा convenient नहीं होगा, but हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको ये कर लेंगे. Please bear with us. Okay. And if you want some of the important messages to be translated, then I will leave it to Kanupriya to do this. I know that she's a very good translator, and even Vasundhara, both of them have been working as my translators. So I think they can do some brief translation can be done by them. Okay. So with this, I would request them to start the session. Okay. Thank you so much, ma'am. So the theme of this session is Indigenous Identity and its survival in the digital era. And as ma'am mentioned, this is a bilingual session, and we have three speakers on board, Ms. Mridula Rashmi Kindo, Mr. Sundar Manoj Hembram, and Mr. A.K. Pankaj. I welcome all here. And this session will be chaired by Ms. Vandana Tete. She is a writer, poet, journalist, publisher, and a cultural activist. She has focused on the Adivasiyat, or the tribal worldview. Through many of her lectures and writings on Adivasi culture and philosophy, she has provided a new direction to the field of Adivasi studies. Among her notable scholarly works are Purkha Ladake, published in 2005, Jharkhand, Ek Anthin Samar Gatha, 2010, Adivasi Sahitya, Parampara or Prayojan, 2013. Her literary works include a poetry collection titled Konjoga, 2015,
and an anthology of tribal folk tales titled Lokpriya Adivasi Kahaniyan, published in 2016. For her contribution to the field of Adivasi journalism, she has been conferred with an award by the Jharkhand government in 2012. She is actively associated with two Adivasi NGOs, Jharkhand Bhasha Sahitya Sanskriti Akhra and Pyara Karketa Foundation. मैम वी आर ऑनर्ड टू हैव यू एज अ चेयर फॉर दिस सेशन। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप हमारा सेशन चेयर कर रही हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के लिए। और इसके बाद मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ इस सेशन का संचालन करने के लिए। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। ओवर टू यू मैम। जोहार सभी को। आईवी जी आपको भी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को भी, और जितने भी रिपोर्टर्स जो इस सत्र की को रिपोर्ट करेंगे उन सभी को, और साथ में जो मेरे इस सेशन के जो वक्तागण हैं, सुंदर जी, मृदुला जी और पंकज जी, आप सभी लोगों को जोहार। जोहार। आज वास्तव में बहुत एक ऐसे सेशन में है हम लोग, एक ऐसे सत्र में है जो लगातार हमारा जो समाज है वो हम लोग देख रहे हैं कि झेल रहा है, और लगातार उसमें एक तो संघर्ष भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, दोनों ही स्थितियों में वो चल रहा है। तो हम लोग जो कहते हैं कि आदिवासी चौतरफे हमले से का शिकार हो रहा है, लेकिन सिर्फ हमले का शिकार नहीं हो रहा है बल्कि चौतरफे दिशा में वो काम भी कर रहा है। तो आज के इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं चाहूँगी कि इसको आगे बढ़ाया जाए और हम समय का ध्यान रखें जरूर। जो भी स्पीकर हैं वो अपने अपने समय का ध्यान रखें। मुझको लगता है सर जैसा निर्देश था कि 15 मिनट हर एक को मिलेगा, तो मैं चाहूँगी कि सब लोग अपनी बातों को रखते हुए समय का ध्यान जरूर रखें। I leave it to the discretion of the chairperson to give a little extra time if she thinks that it is required. So आपके डिस्कशन पर डिपेंड करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कभी कभी देना पड़ता है तो दे सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है ना? Okay. तो सबसे पहले मृदुला रश्मि किंडो जी हैं। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात शुरू करें। जोहार, मैं सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, सब लोग। वंदना जी, आपको उनका बायो नोट को इंट्रोड्यूस आपको करना चाहिए था। ओह, मुझे नहीं मिला है। अच्छा, can you please give the, I have sent the bio note to you. Vasundhara and Kanupriya, I had sent the bio notes of all the Shall I introduce? Yes, please do. Everyone has to be introduced. I will do that. The speaker has to be introduced by the chair, but since it was okay. you I'll doesn't matter. Yes. So Mridula Rashmi Kindo, she's an associate professor, School of Humanities, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. She's a scholar and translator employed as the associate professor, as I said. She did her MPhil on a collection of short stories of the Oraon tribe at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and has worked on apartheid and gender in the writings of Nadine Gordimer for a PhD. Her areas of interest and specialization include South African literature, new literatures in English, literatures from the margins, and translation studies. She has developed several BA and MA courses at IGNOU, including MA elective courses in American literature and writings from the margins. She has published several articles in journals and edited volumes of books. She is an upcoming translator from Hindi and Kurukh into English. We welcome you, ma'am. Thank you. Can you hear me? Yes. सबको जोहार। और आज मैं आईवी को, डॉक्टर आईवी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपना विचार रखने के लिए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा पेपर तो इंग्लिश में ही है, इसीलिए मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी।
अंग्रेजी में ही बोलूंगी। तो टाइटल, मेरा पेपर का टाइटल है टीचिंग ट्राइबल एकेडमिक प्रोग्राम्स थ्रू डिजिटल मीडिया। I've shared my screen. I hope you can see the screen, the PowerPoint on the screen. Yes, ma'am. It's Ah. visible. So I'll move to the first slide. Social media and digital technologies are being all over extensively in the world, including India. And Adivasi youngsters have picked up the new technologies very fast due to the affordable Android phones that they possess. The people, especially the young Adivasi men and women, knowingly or unknowingly have been promoting their culture, language, literature by uploading videos and information showcasing Adivasi culture on the digital media. They share pictures and videos on digital platforms such as Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, etc. Today, there are numerous such videos on tribal culture, cuisine, on dance and song albums, on tribal rituals, celebration of tribal festivals, and also teaching, some videos are there to teach tribal languages. Cultural identity and knowledge of the tribal community have been included on social media platforms that show positive potential in the lives of young Adivasis. They share tribal way of life and knowledge ideas virtually that gives a lot of information. They have been utilizing digital media and web-based platforms that can be accessed from the computer and mobile technologies. The numerous viewership of these videos prove that the mainstream viewers are curious and like the information shared by them. We see the impact of digital technologies on indigenous cultural sustainability. It enables to maintain and revitalize the tribal cultures. According to a study done in the year 2020, there have been around 74 crore 80 lakhs users who use smartphones. So the majority of people today afford digital technology that can disseminate cultural information and knowledge globally. These knowledge and information dispersed by them spread very easily and quickly around the world. And the young tribals, they no longer shy away from using the digital media, but they disseminate cultural information and knowledge globally. The Adivasi community can assert themselves with the digital platforms by making themselves heard, by making their history, culture, customs, traditions, and literature visible. According to Rodrigues, digital media has become a significant platform for the indigenous community to document and protect their cultural identities. One can raise one's voice and challenge the hegemonic misrepresentations locally and globally easily. Before the inception of the digital media, due to lack of Adivasi journalists and the ones who could speak the local language, the plight of the Adivasi communities had very little coverage on the media, or the coverage was distorted. Or sometimes the journalists faced intimidations while they were showing facts about the Adivasis. With the coming of the digital media, knowledge and information dispersed by the Adivasis have spread very quickly around the globe. Therefore, the digital media plays a crucial and a significant role in challenging hegemonic stereotypes. The education system in India, for example, is based on the privileged culture. History and other textbooks hardly ever mention the contribution of tribals who had taken part in resistance movements or freedom struggles of India. As a result, this causes a negative self-image among the Adivasis and a negative attitude to their own culture, which in turn contributes to their disadvantaged status. There is the need of the hour to legitimize indigenous discourses and to create awareness about the issues of Adivasis. One of the ways is by educating the mainstream about the history, culture, worldviews, and the literature of Adivasis by introducing academic programs on the digital platforms. Adivasis have a rich heritage and culture,
that is worth knowing. And it will also remove the biases that the mainstream have about them. Academic courses on tribal language, literature, and tribal studies have been there, which are there in universities, but it's taught as a regular basis, and it's picking up pace very fast. The two central universities in Amarkantak and Andhra Pradesh, they provide avenues of education, especially higher education and research facilities to all students, and inclusion of tribal students in the mainstream, to bring them to the mainstream. The Central University of Amarkantak has a Department of Tribal Studies, and so does the Central University of Hyderabad, the Tribal Central University of Hyderabad. Then we have Ranchi University, which has Department of Tribal and Regional Languages, offering 9 tribal languages, that is Nagpuri, Mundari, Kuruk, Kurmali, Santhali, Khorta, Panchpargaria, and Ho. Then the Central University of Jharkhand also has a Department of Tribal Studies and Department of Contemporary and Tribal Customary Law. Nehu, or Northeastern Hill University, has a Garo department that broadens the concept of literature beyond the mainstream. The course includes research activities of the written and oral literature, culture, language, and dialects of the Garos. The Khasi department is making tremendous efforts to develop and enrich Khasi language and literature. Then we have the Naga University, Nagaland University, which has a Center for Naga Tribal Language Studies, and it offers PG diploma, MPhil, and PhD programs. Manipur University offers MA and PhD programs in Manipuri language and literature. Mizoram University includes Mizo language and literature for the MA and PhD programs. Sidhu Kanhu Murmu University, Dumka, has BA and MA program in Santhali language and literature. Kolhan University, Chaibasa, offers Masters of Arts in Ho, Kurmali, and Santhali languages. The Nilambar Pitambar University, Palamu, also offers a course in Santhali language. Now, these academic programs are all in the conventional mode, and so these programs are localized, because of which these courses are exclusively accessible to the local students. To make these courses available to a wider population, I think we need to make an effort to switch over to the online mode of teaching, apart from the conventional mode. The conventional mode can also stay, but they can also have online mode of teaching, so that it is accessible to all those who are interested to learn these languages, or those having interest to gain knowledge about the tribal culture, art, literature, and worldview. We need to take such steps if we want these courses to be inclusive, and we want them to be recognized by the mainstream, and also if we want to reduce the risk of these languages from disappearing. Now, IGNOU has taken the initiative to produce some tribal academic programs on the digital platform. We have a certificate in tribal studies, which is a course, which is an online program, which is launched by IGNOU last year during the time of pandemic. It is of 6-month duration, and it has the flexibility of being completed in 2 years. And the fees for this course is also nominal, which is ₹1,000. The certificate in tribal studies aims to provide basic knowledge and information to the learners regarding the tribals of India. The course deals with the evolution of the tribal perspective, tribal discourse and policies and legislations, and the development of the tribals. The course provides an insight into the tribals of India, about which many mainstream people are still not aware. This course was mainly designed for those individuals who are working as social workers or working for the welfare of the tribals, so that it would train them and educate them to understand the culture and remove biases, if any, formed during the course of their work. Now, the flexibility of this course is that one can study at their own pace and convenience, because there is no classroom and a teacher which at that particular time. So they have the choice of time, and then they can study from their own place, because at any geographical location. And then flexibility of choosing courses and combination of courses from a wide range of disciplines and subjects. They can choose even after doing simultaneously
with the certificate course, they can also take up some other course. And then the use of modern and appropriate educational and communication technology, the choice of the device is up to them. They can use any digital platform, and they can use any ICT tool. And then this course also has the multimedia mode of instruction, which comprises of self-instructional print material, which is available in the IGNOU's web portal, eGyanKosh, and it is an open access material. So anybody who wants to look at these courses or read them can have access to these courses. Then we have the audio video component, and then there are programs which are transmitted through Doordarshan on the Gyan Darshan channel, which is again a video program. We also have interactive radio counseling, where one can interact with the teachers on the IGNOU FM channel. This online course will be on the SWAYAM portal soon. It will have video lectures for each lesson. The videos will be linked to sites relevant to gain further knowledge and for further studies. And assessments and exams will also be online, and certificates will be given after the completion of the program. And IGNOU has another course, which is part of the MA English program, which is called Writing from the Margins. And I would like to mention here that Dr. Ivy was also part of this initiative, and we also Dr. Mahanand, who is also present here. So I'm grateful to them. This course it will go online in January 2022. So it is already on offer. Our MA program has around 10,000 students, and it will soon be on the digital platform. The course familiarizes the students with the tribal discourse. It discusses the history, worldview, and culture of the tribals. It includes different genres, oral narratives, folk tales, folk songs, short stories, fictions, autobiographies, and essays. And the texts are taken from different tribes. They represent the Kuruk tribe, the Santhali tribe, Lepcha tribe, denotified tribes of Bengal. From Nagaland, we have tribes from Arunachal Pradesh, Kerala, and Nagaland. The texts deal with issues such as representation, land, environment, gender, social and cultural practices, and inter-community relationships. The text also deals with displacement, alienation, exploitation, and resistance movements. The course is unique in that many texts which were not available in English, and we had to translate them from either from Hindi or from the tribal languages. So these texts are documented in our course. We also try to include texts from other major tribes, though we could not include from all the tribes because there was limitation of the size of the course. So with the association of digital platform and education, there are several advantages the educationists are hoping to leverage. The benefits of ICT are many. ICT technology allows learners to work individually at their own pace and according to their own needs and situations. This is especially helpful for those learners who are engaged in different occupations and cannot follow the time guidelines of the conventional system. This technology also increases the learner's confidence in their own abilities as it trains them to self-monitor and self-assess their progress, which promotes learner autonomy, skills that learners need to successfully complete their courses. The computer with its multiple technologies and also the mobile device with its multiple technologies offers opportunities for successful collaborative learning and teamwork in small groups. It also helps the teachers to make the presentation of the content more dynamic and attractive for learners because they're using visuals, pictures, they're using videos and audios. So this makes the learning more interesting. This fits in well with the theory of multiple intelligences of Gardner, which emphasizes that there are intelligence other than the linguistic logical used by learners, that there are in positive ways where they acquire knowledge and interact with the world. So the learners who are not comfortable with the print media can switch on to the audiovisual component or to the other digital technologies or use other ICT tools to learn these or study these courses. Then we have the academic courses on the digital platforms
which always have more students enrolled because of the flexibility and easy access. One example is Sambalpur University, which is the nodal center for tribal studies for the SWAYAM platform. They had conducted a course on tribal studies on the SWAYAM platform. This course was of 4 months duration, and there were around 1,570 learners who were enrolled for it, which is much more than what we have in regular courses. It had a total of 40 hours duration, where 20 hours was video lectures and 20 hours was allocated to the reading of study materials, which was also available on the digital platform. The course focused on diverse aspects of the tribal communities of India. It focused on their health, their education, land, climate, economic problems, Naxalism, and different policies and programs of tribals. We have another example of the Vinoba Bhave University, Hazaribagh. They have this tribal language department, which has introduced a certificate course in Kuruk, Santhali, Mundari, Kurmali, and Kortha languages for the last 4 years. It is a certificate course, so it's only of 6 months duration. But because very few students were enrolled in it, the department is struggling to run the language courses. The reason being, again, of low enrollment is that only local students can take these courses, or the ones who are staying in the state. And if the tribal language courses, if they are taught through digital platforms, then obviously there would be more takers from different geographical locations. To protect the tribal languages from the risk of disappearing, they need to be taught through digital media as well. According to Kancha Ilaiah, we need to make every possible effort to empower the languages of the underprivileged and tribal and endangered languages. Affirmative action is called for in this domain. Taking the cue from him, we need to think out of the box to preserve and protect Adivasi culture and identity. According to Appadurai and Gutzberg, digital media is an easy way to preserve indigenous culture, knowledge, art, and literature. In the contemporary era, community-generated constricted identities, legitimizing narratives, and building communities both in local and global contexts. And according to Uttaran Datta, with the help of digital media, the barriers such as negligence and alienation of the tribals and the issues, geographical isolation, communication gaps such as linguistics and literacy barriers can be overcome. Thank you. थैंक यू अमृतुला जी, आपने जो वक्तव्य दिया है उसमें मुझे लगता है कि लगभग हम जिस विषय को लेकर के बैठे हैं उसमें खास करके इग्नू की जो भूमिका है उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया है। मैं नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं उनके लिए मैं कनुप्रिया को इंट्रोडक्शन के लिए। Thank you, ma'am. So before I introduce our next speaker, I would just like to remind our participants to write their questions in the chat box, and all of the questions will be addressed once all the presenters have completed. And so now I would like to invite Sundar Manoj Hemram for the next presentation. He is a popular Santhali fiction writer and translator with over 40 short stories and one Santhali short story collection, Sengel Buru, to his credit. He has received the Jharkhandi Bhasha Sahitya Sanskriti Akhra Award in Santhali in 2013. As a translator, he has been translating short stories from English to Santhali, and he has also translated poetry from Hindi to English. We welcome you, sir. मेरे तरफ से सभी को जोहार। मैं आशा करता हूँ शायद मेरी आवाज क्लियर है। Yes. ओके। सबसे पहले मैं अपने पूर्व वक्ता मृदुला जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने
सारे विषय को ही लगभग टच किया जो हम यहाँ परिचर्चा करने वाले हैं उसमें से। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आदिवासी समुदाय जिस नैरेटिव को गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं उसका सरकारी तौर पे भी कार्यक्रम चल रहा है यूनिवर्सिटियों में और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात हुई। तो ये जानकारी देने के लिए मृदुला जी को बहुत आभार। और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जामिया मिलिया इस्लामिया के इंग्लिश डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। और विशेषकर डॉक्टर आईवी आसदा जो हमारी बहुत करीबी मित्र भी हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन एक क्रिएटिव राइटर और एक ट्रांसलेटर के तौर पे मेरी जो निजी समझ पैदा हुई है और मेरी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। कल का विशेषकर कल का जो सेशन रहा कीनोट स्पीकर पद्मश्री प्रोफेसर अन्विता अब्बी का मैंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारी मिली। और बड़ा यूनिक या टॉपिक सुना है ना। तो उनका जो वक्तव्य था उससे मेरे जो विश्वास थे मैं जिस तरह से सोचता था वो और स्ट्रेंथन हुआ। तो इसलिए प्रोफेसर अन्विता अब्बी को भी मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है प्रिजर्विंग ट्राइबल मेमोरी थ्रू न्यू फॉर्म्स ऑफ ओरलिटी इन डिजिटल एरा। तो इसमें मैंने 2 कीवर्ड्स चुने हैं। पहला कीवर्ड है द कलेक्टिव मेमोरी और दूसरा जो कीवर्ड है वो है इंडिजिनस नैरेटिव। तो मैं इन्हीं 2 कीवर्ड्स के बीच में अपनी बात रखना चाहूँगा। तो जैसे कि कल अन्विता मैम ने भी कहा है कि जब से ये टेक्स्ट का प्रचलन हुआ, जो रिटर्न टेक्स्ट आने लगा, तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड क्रिएट हुआ जो ट्राइबल का नैरेटिव जो ओरल लिटरेचर है उसको खारिज करता है। तो हम लोग धीरे धीरे उस जो हम लोगों के नैरेटिव को खारिज किया गया ओरल लिटरेचर को, उसको भी हम लोग पाटने का लेकिन कोशिश में है और काफी आगे से कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न लिटरेचर में हम लोग अभी से नहीं आए। लगभग 19वीं शताब्दी के एंड से ही हम लोग का रिटर्न नैरेटिव शुरू हो गया था। लेकिन बात है कि हमारा जो नैरेटिव है रिटर्न टेक्स्ट के रूप में वो मेन स्ट्रीम में उतना जगह उसको नहीं मिला। लेकिन जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है तो यहाँ एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो गया है, जिसके कारण से हमारे जो आदिवासी नरेटर हैं वो भी अपने बातों को नरेट कर पा रहे हैं और इनसाइडर्स स्टोरी के लिए इनसाइडर्स स्टोरी दे पा रहे हैं, जिसके कारण से हम जो कल भी चर्चा में हुआ कि आउटसाइडर्स जो स्कॉलर हैं उस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम कम्युनिटी के लोग हम खुद से अपना नैरेटिव गढ़ पा रहे हैं। तो उसका गढ़ पा रहे हैं और उसका मैं एग्जाम्पल एक देना चाहूँगा कि मृदुला जी ने बहुत कुछ कह ही दिया कि अब जब से डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ है तब से ट्राइबल लेकिन अपना असर्शन दे रहा है, सिर्फ रिटर्न टेक्स्ट में नहीं बल्कि वो विजुअल कंटेंट के रूप में भी दे रहा है। इसके बाद जो हमारा
कम्युनिटी का मुख्य मेन स्ट्रेंथ है वो है ओरलिटी के रूप में भी दे रहा है, और प्लस में वो बाकी सारी चीजों को, मतलब रिटन टेक्स्ट, ओरलिटी, विजुअल मीडिया, ये सब को भी कंबाइन करके भी कंटेंट दे रहे हैं। तो इसमें विशेषकर मैं 3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पहला है कि जैसे हमारे कन्वेनर डॉक्टर आईवी हस्ता ने भी एक ई जर्नल शुरू किया है, द जोहार जर्नल, जिसमें आदिवासी समुदायों के स्टोरी, कविता, ऐसे वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है, जो जिसका मुझे लगता है जिसका गुणवत्ता जो मेन स्ट्रीम के किसी भी जर्नल से कम नहीं है। तो ये एक प्रयास, उनका सराहनीय प्रयास है, क्योंकि अगर हम अपने नरेटिव को ट्रांसलेटेड फॉर्म में लेके आते हैं, और जैसे कल प्रोफेसर अब्बी ने भी कहा कि इंटरलिनियर ट्रांसलेशन का बहुत जरूरी है आदिवासी समाज के भाषा को समझने के लिए। जब तक ये इंटरलिनियर ट्रांसलेशन नहीं होगा, तब तक मेन स्ट्रीम के लोग आदिवासी समाज का जो गुण है, जो गुणवत्ता है, उसको नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए डॉक्टर आईवी हंसदा का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और सेकंड मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा झारखंडी भाषा साहित्य अखाड़ा का, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए हैं जो हमारे ट्राइबल नैरेटिव को असर्ट करते हैं। उसमें से मैं 2-3 प्रोग्राम का उनका नाम लेना चाहूंगा, जिसमें बन्ना जी और ए के पंकज जी बहुत बधाई के पात्र हैं। वो है जिसे कम्युनिटी रेडियो उन्होंने स्टार्ट किया था असुर समुदायों के लिए। सवाल ये है कि जो यहाँ इंडिया के मेजर ट्राइब हैं, उनके विलुप्त होने का उतना खतरा नहीं है, उन्हें किसी से खतरा नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा उन इंडेंजर्ड ट्राइब का जो संख्या में कम है। तो उनके पास जो कम्युनिटी नॉलेज है, हमें उसे बचा के रखना है। तो उसे बचाने के लिए जो आखा ने प्रयास किया, वो तो बहुत सराहनीय है, और ये लोगों के बीच में आना चाहिए। ये सरकारों को भी जानना चाहिए कि इंडिविजुअल एफर्ट और एक एनजीओ के एफर्ट से किस तरह का काम हो रहा है, और इसको तो सरकार को भी फॉलो करना चाहिए। तो कम्युनिटी अखाड़ा जो असुर समुदाय के बीच में उन्होंने शुरू किया है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद दूसरा चीज, हाल में ही उनका एक प्रोग्राम खत्म हुआ है, वो है आदिवासीडम वर्कशॉप का। आदिवासियत का वर्कशॉप का जो उन्होंने सीरीज में प्रोग्राम किया है, जो देश के विभिन्न इलाकों में जा करके एक प्रोग्राम होता है। ये असल में विभिन्न आदिवासी समुदायों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ताकि आदिवासी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो पाए। हम आदिवासी एक दूसरे समुदाय को नहीं ठीक से समझते हैं, तो कम से कम इस वर्कशॉप के थ्रू से यदि हम एक दूसरे को समझ पाए, तो ये आदिवासी समुदाय संपूर्ण आदिवासियत के लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा मुझे सबसे इंटरेस्टिंग उनका प्रोग्राम लगा था, वो है ए के पंकज जी कुछ आदिवासी पर्सनालिटियों को लेकर के इंटरव्यू का काम ऑनलाइन में, जो यूट्यूब में भी जिसका प्रसारण होता है, फेसबुक में प्रसारण होता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि हम आदिवासी लोग किस तरह का काम कर रहे हैं और हमारा नैरेटिव क्या है, ताकि वो दुनिया के सामने आए। और उसी कड़ी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, वो था बाखड़ी गमना। तो बाखड़ी गमना जो प्रोग्राम था, इसमें जितने आदिवासी लैंग्वेजेस में कहानी लिखे गए थे, उनका हिंदी अनुवाद रेडियो के जैसे इसमें
सुनाया गया था, ये काफी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था और लोगों ने काफी इसको पसंद किया था। और असल में देखा जाए तो हमारा स्ट्रेंथ ओरलिटी ही है, और अगर हम रिटर्न टेक्स्ट में आ भी गए और उसमें हमारा गुणवत्ता है भी, बावजूद इसके हमें अपने ओरलिटी पर स्टिक रहना होगा, जो हमारा मुख्य स्ट्रेंथ है। और बाखड़ी गमना जो प्रोग्राम था, और ये असल में उसी स्ट्रेंथ को और मजबूती देता है कि हमारा स्ट्रेंथ किंतु कहानी कहना है, और हम अपना कहानी अपना ओरलिटी के फॉर्म में यहाँ भी कह सकते हैं, और जो शायद मेन स्ट्रीम के जो ऑडियंस है उनको भी काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आदिवासी समुदायों के बीच का जो कहानी है वो मेन स्ट्रीम के लोगों के लिए काफी नयापन लेके आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितना ज्यादा कहानियां, जितने ज्यादा नैरेटिव्स आदिवासी समुदायों के बीच से आ सके मेन स्ट्रीम में, वो इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, जो डाइवर्सिटी है, उस फैब्रिक में और एक कलर ऐड कर सकता है। सिर्फ एक कलर नहीं, क्योंकि आदिवासी समुदाय अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो अगर आदिवासी समुदाय के डाइवर्सिटी को इंडिया के जो डाइवर्सिटी है उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो इंडिया और कितना कलरफुल हो सकता है, ये हम सब समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आदिवासी समुदायों के बीच से कहानियां आना, उनका नरेटिव्स आना। तो और मैं बहुत होपफुल हूँ इस विषय में कि शायद इस विषय में काफी अच्छा काम हो रहा है। और लास्टली मेरा थर्ड जो एग्जाम्पल था वो असल में वो मेरा ही है, और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर बड़ो बास्की। ये बोलपुर में रहते हैं, और डेवलपमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा काम है और बहुत यूनिक काम है। और ये उनका काम बाकी सब लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पे उसको लिया जा सकता है। तो पर्सनली मैंने और बड़ौदा ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि बड़ौदा न सिर्फ एक स्कॉलर है, वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, प्लस में वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे गायक हैं, और उनका जो फोक सॉन्ग सब है वो अभी से नहीं कर रहे हैं, काफी पहले से कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि बड़ौदा एक काम करते हैं, आप जितना गाना लिखे हैं, जितना लिरिक्स लिखे हैं, जितना फोक सॉन्ग है आपका, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो बना करके इसको यूट्यूब में हम लोग एक एक करके छोड़ते हैं। और उससे क्या होगा कि बड़ौदा ने उसमें और एक सजेशन दिया कि उन्होंने जो लिरिक्स लिखे हैं, जो गीत लिखे हैं, प्रत्येक गीत का लेकिन एक कहानी है। तो मैंने उनसे कहा कि बड़ौदा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रत्येक लिरिक्स प्रत्येक गीत के साथ अगर नरेशन दे, हाँ, नरेशन को हम लोग एक कहानी के तौर पे पहले हमारे ऑडियंस को दिखाएंगे कि इस गीत के पीछे का कहानी क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग उस गाने के वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करेंगे। तो हम दोनों ने इस सीरीज में काफी काम किया है, और इस सीरीज का नाम असल में हम लोगों ने रखा है आदिवासी नॉस्टैल्जिया, और सबटाइटल में उसमें लिखा है हम दोनों ने सीरीज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ बायगोन डेज, सिदाई कथा सिदाई दिन, ये संताली में है, सिदाई कथा सिदाई दिन। तो इस तरह से हम दोनों ने अब तक 11 गाने यूट्यूब में अपलोड किए हैं, और साथ ही उसका जो मेन उस प्रत्येक गीत के पीछे का जो कहानी है उसको हमने लिखा है। तो ये हमारे ये काम असल में हम दोनों कलेक्टिव मेमोरी को प्रिजर्व करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंटेशन, ये
व्यूअरशिप अर्जित करने के लिए नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेशन है फॉर द पोस्टेरिटी, ताकि फ्यूचर का जनरेशन कभी भी आए और अपने रूट्स की तलाश में रहे और इन सब गानों को देखे और उसके नैरेटिव्स को ये करे, फॉलो करें, तो उन्हें अपने रूट्स के बारे में पता चले। और सेकेंडली हमने सोचा है कि जब ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके जो नैरेटिव्स काफी वॉल्यूमिनस हो जाएंगे, तो हम उनका एक संकलन निकालेंगे बुक के रूप में भी, कि एक साइड अंग्रेजी में रहेगा नरेशन और एक साइड उसका संताली में रहेगा। तो बाइलिंगुअल एक किताब छापने का भी हम दोनों ने सोचा है इसी गाने के सीरीज पे। तो ये हमारे तरफ से एक प्रयास है, और शायद मुझे लगता है कि मेरा टाइम ओवर हो गया है, अब मुझे वाइंड अप करना चाहिए। तो मैं फिर से और एक बार सबों को धन्यवाद देते हुए, जो भी संचालन करता है और जो भी इसके ऑर्गेनाइजर हैं, विशेषकर वो संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया जिन्होंने हमें मौका दिया, उन्हें धन्यवाद देते हुए अपना बात मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जोहार सभी को। जोहार सुंदर जी, आपके बहुत अच्छे वक्तव्य के लिए। क्योंकि निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी जो भी पुरखा परंपराएं हैं, पुरखा मेमोरीज हैं, उन सबको किस तरह से प्रिजर्व कर रहे हैं, इसके बारे में आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी। और आने वाले जो समय है, उस समय में के लिए भी जो आपने तय किया है, मेरी शुभकामना है आपको और बोरो बास्के जी को कि आप लोग इस काम को संपन्न करें अच्छी तरह से। उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। कनुप्रिया, नेक्स्ट। Thank you, ma'am. Ma'am, I would just like to summarize sir's point in brief in English, and then I'll move ahead. So, Sundar Manoj Hemram, he has shared his experience as an Adivasi writer, and he has focused on two main points, that is collective memory and indigenous narrative. And he also mentioned about how there is a discrimination between the printed text, and when the printed text came into being, the orality, the essence of orality was somewhere being ignored. So, he has mentioned three examples which are working in the field of, which are contributing in the field of tribal collective studies in text, orality, as well as visual. And the three examples are, the first is the Johar Journal. It's a great attempt towards bringing the tribal narratives together, which is being initiated by Dr. Ivy Hansta, and there are various erudite scholars on this particular project. And the second, he has mentioned about the Jharkhandi Bhasha Sahitya Akhra, which has worked immensely towards collecting the narratives, and the leading force in this particular project is our chair here, Vandana ma'am, as well as A.K. Pankaj sir. And they have started a community radio for the Asur tribe. It's an endangered tribe. The second is a workshop that they had organized called Asivadidam. And this was to connect different Adivasi communities. And the third that he mentioned was about interviewing different Adivasi personalities by A.K. Pankaj sir. And the Bakri Gama that he mentioned, this is the Hindi translation of various tribal stories of from different languages. And sir also mentioned how we need to stick to our essence, that is orality, our strength of tribal narratives. And the third important point that he mentioned, the example that he gave, is that of Boro Baski sir and sir himself. And they are working towards conserving various narratives, and the project that they have titled it as the Adivasi Nostalgia, series of songs of bygone days. And they are actually combining the songs and the narratives behind, the stories behind those songs, and they're uploading those on YouTube. They've already uploaded 11 songs,
And this is a kind of collective memory that is being documented for the posterity. So thank you so much, sir, for this enlightening lecture, and we are so happy that we had you as a speaker today. And as our chair has given me the consent to introduce to our next speaker. So I welcome our next speaker, A.K. Pankaj sir. He is a renowned storyteller, cultural activist, and an independent researcher. He mainly writes on Adivasi art, culture, history, and literature. His popular books are Penalty Corner, it's a short story collection, Marang Gomke Jaipal Singh Munda, it's a biography on Jaipal Singh Munda, Mati Mati Arkati, it's a Hindi novel on the forceful displacement of Greater Jharkhand's Adivasi as indentured labor in the early 19th century, and Adivasidam. He has been publishing and editing a fortnightly newspaper, Johar Disum Khabar, and a quarterly performing art magazine, Rang Varta. Pankaj sir is a multidisciplinary storyteller and performer, working for more than 4 decades in print, theatre, audiovisual, web, and graphic designing, and the digital medium as well. We welcome you, sir. Yes, over to you, sir. सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सबको जोहार। आज के इस सेशन में, जो कि एक बड़ा ही गंभीर सेशन है अपने विषय के लिहाज से, क्योंकि ये आदिवासियों की आइडेंटिटी डिजिटल एरा में किस तरह से है उस पर फोकस है ये सेशन। तो मैं इसके आयोजन के लिए और पूरे 2 दिनों के आयोजन के लिए सबसे पहले आईवी मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जामिया मिलिया के इंग्लिश डिपार्टमेंट्स के को बधाई देता हूँ, और जो यहाँ पे जो आपके 2 साथी हैं कनुप्रिया जी और उन दोनों को भी मैं बधाई देता हूँ। कल का सेशन में अटेंड नहीं कर सका था क्योंकि मैं जरूरी काम में बिजी था। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कनुप्रिया और वसुंधरा गौतम मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जी। तो या पीएचडी कर रहे हैं इस लाइव वेबिनार को, इंटरनेशनल वेबिनार को कंडक्ट करने में, तो इसलिए मैं उनको भी शुक्रिया कहता हूँ। दोस्तों, जो लोग भी अभी मैंने इस सेशन में सबसे पहले मृदुला जी को सुना, उसके बाद में सुंदर मनोज हेम्ब्रम जी को सुना। मृदुला जी के बारे में ये मेरी कमजोरी है कि मैं नहीं जानता हूँ, पर सुंदर मनोज हेम्ब्रम के काम से काफी वाकिफ हूँ और बहुत इम्प्रेसिव भी रहा हूँ। मेरे जो वक्तव्य का विषय है, मेरे पास घड़ी वड़ी नहीं है और मैं ज्यादा बोलता हूँ, तो इसलिए टाइम हो जाए तो मुझे रोक दिया जाए, है ना? ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक है वो डिजिटाइजिंग आदिवासीडम, प्रेजुडिस एंड परफॉर्मेंस। तो आदिवासियत या आदिवासियों का जो डिजिटाइजेशन इस डिजिटल एरा में शुरू हुआ है, डिजिटाइजेशन तो कॉलोनियल पीरियड में ही शुरू हो गया था, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये सबसे हाल की घटना है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, खास करके जो प्रेजुडिस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो अपने आप को मेन सोसाइटी कहता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहता है, उसके प्रेजुडिस क्या हैं और आदिवासियों के परफॉर्मेंसेस क्या हैं इस डिजिटल एरा में। मेरे टॉपिक मैं जो बात रखने जा रहा हूँ, इन्हीं 2 छोरों के बीच में अपनी बात रखूंगा। 2-3 चीजें हैं जिनको हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी पहचान की बात करते हैं, तो वो है क्या। भारत में हम लोग जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड से पहले आदिवासियों को किस रूप में देखा जाता था। तो इस बारे में जो रिटन लिटरेचर अवेलेबल हैं दूसरे धर्मों के, खास करके
हिंदू धर्म के और जो मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम धर्म में काफी कम है वो, क्योंकि मुगल काल के दौरान लिखा गया फारसी में खास करके। तो कॉलोनियल टाइम से पहले आदिवासियों को किस रूप में देखा जाता था? तो आप सब जानते हैं कि इसके लिए जो हमको प्राचीन जो संस्कृत लिटरेचर है, रिलीजियस माइथोलॉजिकल लिटरेचर्स हैं, उसमें आदिवासियों के लिए जो नाम है असुर, राक्षस, दैत्य, निषाद, कोल, इस तरह के नाम हैं। और कमोबेश यही नाम, खास करके कोल नाम, मुगल पीरियड में आदिवासियों के लिए ज्यादा मुस्लिम शासकों ने इस्तेमाल किया है। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या टर्मिनोलॉजी आती है? कॉलोनियल पीरियड में जो टर्मिनोलॉजी आती है आदिवासियों को रखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, वो है ट्राइब, ट्राइबल, एबोरिजिनल, प्रिमिटिव, इस तरह के शब्द जो है ब्रिटिश टाइम में आदिवासियों को दिया गया। आफ्टर 50 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया तो आदिवासियों को क्या कहा जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली आदिवासियों के लिए अंग्रेजी में टर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब, और हिंदी में जिसको कहा जाता है जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर देखें तो 50s के बाद, या हम कहें 20th सेंचुरी, शुरुआती 20th सेंचुरी से आदिवासियों को क्या नाम दिया जा रहा है? तो उनको बनवासी, जंगली, बर्बर, असभ्य, कोल, चुहाड़, ये सब नाम आदिवासियों को दिए जा रहे हैं। और इन सब के बीच ये हमको देखने की जरूरत है। तो ये जो प्रिजुडिस है, जो थ्रू आउट अदर रिलीजियस जो एक्सप्रेशंस हैं, उससे लेके कॉलोनियल पीरियड तक और इंडिपेंडेंट इंडिया में आदिवासियों को के लिए अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। और इसके बीच अब हम लोग अगर ये देखें कि आदिवासी खुद को क्या कहता है, तो जो लोग यहाँ पे हमारे संताली से 2 लोग हैं और बाकी सारे ऑडियंस में होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, आईवी जी हैं, सुंदर मनोज हेम्ब्रम हैं, और कुड़ुक से, उरांव से मृदुला जी हैं। तो उरांव का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ऑस्ट्रोएशियटिक लैंग्वेजेस हैं उसके जो बोलने वाले आदिवासी कम्युनिटीज हैं भारत में, जिनमें मुंडा, संथाल, भील, हो, खड़िया, ये सब लोग हैं। तो ये अगर हम इन लैंग्वेजेस में देखें, ऑस्ट्रोएशियटिक लैंग्वेजेस में देखें, तो मुंडा अपने को क्या कहते हैं, संथाल अपने को क्या कहते हैं, खड़िया अपने को क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली अपने को हो कहते हैं। हो मीन्स ह्यूमन, होड़ो, होड़ो को, होड़, ये वर्ड है उनके पास खुद के पहचान के लिए। होड़ मतलब ह्यूमन, इंसान, तो वो अपने को इंसान कहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट में उनको असुर कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है। कॉलोनियल टाइम में उनको प्रिमिटिव कहा जाता है, ट्राइबल कहा जाता है, एबोरिजिनल कहा जाता है। और ये सब और फिर 20th सेंचुरी में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पीक पे आता है, तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो उनको बनवासी कहते हैं, जंगली कहते हैं, गिरजन कहते हैं, ये सारे नाम दिए जाते हैं। तो एक समुदाय खुद को तो इंसान कह रहा है अपनी पहचान के बतौर, वो अपने आप को इंसान के रूप में रख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, वो चाहे संस्कृत के ब्राह्मण हो या अपर कास्ट हो, या हमारे कॉलोनियल मास्टर हो, मिशनरीज हो, या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो हमको प्रिमिटिव कहते हैं, एबोरिजिनल कहते हैं। और जो 20th सेंचुरी की शुरुआत से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट आता है, उसमें भी हम लोगों को इसी तरह का अपमानजनक शब्द से हम लोगों की पहचान पूरे भारत में बनाई जाती है। तो ये जो प्रिजुडिसनेस है और जो परफॉर्मेंस है, मतलब एक आपको राक्षस कह रहा है, डेमोन कह रहा है, जंगली कह रहा है, और वहीं आदिवासी खुद को इंसान कह रहा है, होड़ कह रहा है, वो कह रहा है। तो अब इन दोनों की क्या स्थिति है डिजिटल एरा में, इसको हम लोग देखते हैं। मैं जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कंडक्ट कर रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो लोग जरा गूगल सर्च को शेयर करें स्क्रीन पे, है ना, प्लीज।
कृपया स्क्रीन शेयर करें, जी सर, जी सर। गूगल सर्च चलाएं। हाँ, जी। अब इसमें आप टाइप करें ट्राइबल, सर्च मारिए, स्क्रॉल कीजिए, क्या करिए सर? स्क्रॉल कीजिए, जी। या ओके, रुक जाइए। तो अभी आपने आप देख रहे हैं कि हमने डिजिटल एरा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है नेट, और उस पे अगर आप ट्राइबल सर्च मारते हैं तो आपको किस तरह के टेक्स्ट दिखाई देते हैं और किस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं। एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए। जी। ओके, अब आप आदिवासी वर्ड सर्च कीजिए। थोड़ा सा अगर जूम करें तो आप देखें कि जो शुरुआत के 4 जो वीडियोज आ रहे हैं, हाँ, वो किस तरह के हैं। 2 हैं, शुरुआत के 2 आप देखेंगे कि आदिवासी सॉन्ग है, दूसरा विश्व आदिवासी दिवस पर सुपर हिट सॉन्ग है, और तीसरा है हाय गोरी, और चौथा है भगोरिया का कोई वीडियो सॉन्ग। नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आप देखेंगे कि पहला जो टेक्स्ट का जो है विकिपीडिया का पेज है, दूसरा भारतीय आदिवासी का विकिपीडिया का पेज है, और तीसरा फिर आप देखेंगे आदिवासी स्वर और नई शताब्दी है। फिर इस तरह के नीचे और आइए, और ये उसके साथ में वो आपको कुछ इमेजेस दे रहे हैं, है ना। अब YouTube खोलिए थोड़ा, और इसमें ट्राइबल सर्च मारिए। स्क्रॉल कीजिए, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह के वीडियो जब आप ट्राइबल सर्च मारते हैं तो आपको YouTube जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वीडियो कम्युनिकेशन का, वीडियो इंफॉर्मेशन का, वो किस तरह के वीडियोज आपको बता रहा है। पहले जो 10-20 वीडियो आ रहे हैं, जो अभी मैंने आप लोगों से कहा कि हमको पहले कैसे देखा गया, 20th सेंचुरी और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हमको किस तरीके से देखा गया, और डिजिटल एरा में आपको किस तरीके से देखा जा रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है। आदिवासी वर्ड को थोड़ा सर्च मारिए। अब आप इसमें भी देखें कि लगभग उसी तरीके के आदिवासी या ट्राइबल दोनों से जब हमने वीडियो सर्च मारा तो स्क्रॉल करें नीचे, ओके, स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, एक बार और आपको कष्ट दूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जो कल हमारे वक्ता थे, खास करके पीटर जी, आज जो हमारी वक्ता है मृदुला जी, और जो दूसरे सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिजिटल एरा कैसे हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और आदिवासी अपनी सेल्फ इमेज बदल रहे हैं, और जो कंटेंट्स आ रहे हैं उससे भी ट्राइबल्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर कोई बिगनर्स ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासी के बारे में
अगर वो नेट पे सर्च मारता है तो उसको क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, टेक्स्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। तो इसलिए हमको ये बहुत क्रिटिकली देखना होगा, बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा कि डिजिटल एरा में हमारा परफॉर्मेंस क्या है। हमारा परफॉर्मेंस मतलब आदिवासियों का परफॉर्मेंस क्या है, उस पर मैं आगे थोड़ा बात करूंगा। अभी हम लोग जो प्रिजुडिसनेस है उस पर बात करेंगे, जो पूर्वाग्रह है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के, उस पर बात करेंगे। तो आपने जो टेक्स्ट देखे, जो विजुअल्स देखे, वो उसके उस पूर्वाग्रह को कंटिन्यू किए हुए हैं जो हम लोग थ्रू आउट सो कॉल्ड संस्कृत के क्लासिकल टाइम से लेके अर्लियर 20th सेंचुरी तक और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया तक जो हम लोग देख रहे हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है डिजिटल एरा भी। डिजिटल एरा में आदिवासियों की पहचान बिल्कुल अलग नहीं है पहले से। मतलब जो आपने देखा कि कैसे वो आदिवासी बिना कपड़ों के रहते हैं, जो इमेजेस थे आपके सामने आए, वो किस तरीके के रहते हैं। तो ये बताता है कि पूरी दुनिया, नॉट ओनली सिर्फ भारतीय लोग, पूरी दुनिया आदिवासियों को भी किस रूप में देखना चाहती है। वो आपको उसी तरीके से देखना चाहती है जो इमेजेस उन्होंने थ्रू आउट पिछले 5000 साल से बना रखा है, उससे आपको बाहर नहीं देखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा मृदुला जी का। मृदुला जी ने बहुत अच्छे से अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अपनी बात रखी और ये बताया कि कैसे भारतीय यूनिवर्सिटियों में ट्राइबल स्टडीज आ गए हैं। तो आपको एग्जांपल दूंगा अमरकंटक का, जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। क्या वहां पे ट्राइबलिज्म है ना, या आदिवासियत, आदिवासडम, उसको पढ़ाया जाता है? क्या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जैन फिलॉसफी है, बौद्ध फिलॉसफी है, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी है, क्या आदिवासी फिलॉसफी सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली पढ़ाया जाता है एज ए फिलॉसफी? क्या कोई भी पार्टिसिपेंट बता सकते हैं कि आदिवासीडम, आदिवासी वर्ल्ड व्यू या आदिवासी फिलॉसफी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? जाहिर है कि नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? तो जो एथनोग्राफिक अप्रोच है हमारा कॉलोनियल टाइम का, जो हमको कॉलोनियल मास्टर्स ने दिया, जिन्होंने हमको एजुकेशन सिस्टम दिया, उसी एथनोग्राफिक अप्रोच के साथ हम पढ़ाते हैं कि उनका लैंग्वेज क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका डांस क्या है, उनका रिचुअल्स क्या है, और उनके दूसरे परफॉर्मेंसेस क्या है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो, चूंकि हम लोग गवाह हैं, झारखंड में भारत का सबसे पहला ट्राइबल डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी में जो खुला था भारत में, वो सबसे पहले झारखंड में खोला गया था, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। क्या आपने एग्जामिन किया है कि ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के जो कोर्स हैं उसका डिजाइन क्या है, उसके कंटेंट क्या है? मृदुला जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि वो लोग जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो हिंदी से ट्रांसलेट कर रहे हैं, अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो ट्राइबल लैंग्वेजेस से ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेट कर रहे हैं आप, तो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे मृदुला जी, इसको पर्सनल नहीं लीजिएगा, मैं जनरल बात कह रहा हूं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए अपने लेक्चर में, तो उन्होंने जो रेफरेंस दिए वो कांचाई लैया के थे जो ट्राइबल नहीं है, अप्पा दुराई के थे जो ट्राइबल नहीं है, जो दत्ता जी के थे वो ट्राइबल नहीं है। तो एकेडमिक सेक्टर्स में, इंटेलेक्चुअल सेक्टर्स में जो ट्रांसलेशन और जो रेफरेंसेज हैं वो आदिवासियों पे बात करते हुए भी आदिवासियों के नहीं होते। किसी खाका का, किसी टोप्पो का, किसी हेम्ब्रम का, किसी टुडू का, किसी टेटे का को लोग कोट नहीं करते हैं। कोट किसको करते हैं? कोट करते हैं नॉन ट्राइबल्स। तो ये एक एग्जाम्पल है। मैं फिर से बहुत विनम्रता से मृदुला जी से निवेदन करूंगा कि ये पर्सनल इसको ना लें,
ये सिर्फ समझाने के लिए है अपनी बात। तो जो सारे कोट हैं एकेडमिक सेक्टर में, इंटेलेक्चुअल सेक्टर में, रेफरेंसेज हैं, वो किसके हैं? नॉन ट्राइबल्स के हैं। जितनी अच्छी किताबें आप हिंदी में और अंग्रेजी में उठा के देखिए तो वो सारे रेफरेंसेज जो हैं वो अदर्स के हैं। तो जो पूरा डिस्कोर्स है डिजिटल एरा में भी ट्राइबल के ऊपर, आदिवासी के ऊपर, वो सेकेंडरी सोर्स से चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं सुंदर मनोज जी के जो उन्होंने 2 पॉइंट पे अपनी बात रखी कि कलेक्टिव मेमोरी और जो आदिवासी वे ऑफ नैरेटिव, जो आदिवासी नैरेटिव स्टाइल है, वो कहाँ है इस पूरे रेफरेंस में? नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा और मुझे कंडेम भी कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप देखेंगे कि जो पूरा एकेडमिक जो डिस्कोर्स है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, वो सेकेंडरी सोर्स पे चलाया जा रहा है, न ट्राइबल्स के ये पे चलाया जा रहा है। अन्विता जी ने बहुत अच्छा काम किया है अंडमान के आदिवासियों के लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से आज इस वेबिनार में पूछना चाहता हूं कि जितने भी एकेडमिक काम भारत में हुए हैं आदिवासी लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर को लेके, उसमें से कितनी भाषाओं को प्रैक्टिकली बचा लिया गया है? अन्विता जी ने बहुत काम किया, पर वो सीनियर बोआ को नहीं बचा सकी, जो ग्रेट अंडमानी की लास्ट स्पीकर थी। वो मर गई, वो नहीं रही, और उनके साथ ग्रेट अंडमानीज की जो एक लैंग्वेज थी वो खत्म हो गई। क्या आपको ये जानना चाहिए कि भारत में सबसे पहली आदिवासी डिक्शनरी 1840 में बनाई गई थी। 1840s में फर्स्ट आदिवासी ग्रामर वाज पब्लिश्ड बाय एसआर टिकल। एसआर टिकल हो इलाके के पॉलिटिकल एजेंट थे और उन्होंने भारत का सबसे पहला ट्राइबल डिक्शनरी बनाया था, हाँ, हो ग्रामर और वोकेबुलरी। उसके बाद ही सारे आदिवासियों के ग्रामर और जो ओरल लिटरेचर है उनको डॉक्यूमेंट करने का प्रयास किया गया। और एसआर टिकल ने अपनी प्रीफेस में लिखा है कि मुझे इस भाषा की जानकारी नहीं है, मैंने लोगों की मदद से ये तैयार किया है और मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ट्राइबल ग्रामर कैसा होगा, हो भाषा का ग्रामर कैसा होगा। मैंने इसमें इंग्लिश ग्रामर को फॉलो किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज तक भारत में जितने भी ट्राइबल डिक्शनरी ग्रामर वो बनाए गए हैं वो उसी एसआर टिकल के मॉडल को मान करके बाद में मिशनरियों ने, सारे मिशनरियों ने और अंग्रेज प्रशासकों ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उस तरह की डिक्शनरी खड़ी की। तो पूरा लैंग्वेज आपका, लैंग्वेज की पूरी ग्रामर आपका जो है वो करप्ट कर दिया गया। बाद में चल के हिंदी में, हिंदी का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आप क्या ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, किस तरह की पेडागोजी ला रहे हैं आप, ये बड़ा क्वेश्चन है। हमको खुश होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों में ट्राइबल स्टडीज आ रहा है, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है कि जो कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, जो कंटेंट लाए जा रहे हैं, जो पेडागोजी जिस तरीके से की जा रही है वो कैसी है। सिर्फ ट्रांसलेशन से अगर वो चीजें आ रही हैं, अगर वो मैं सुंदर जी की बात करूं तो अगर कलेक्टिव मेमोरी और इंडिजिनस नैरेटिव को अगर वो नहीं प्राइमरी तौर पे प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर है कि वो उसी तरह की चीजें रख रहा है जो अभी आपने गूगल सर्च में और यूट्यूब सर्च में आपने देखी। बहुत ही बायस्ड, बहुत ही पूर्वाग्रह से प्रेरित, और जिसमें आदिवासियों के बारे में बिल्कुल वही कंसेप्शन है जो आज से 3000 साल पहले आर्यन लोगों के आने के बाद जो बना, ब्रिटिश टाइम में जो बना, प्री इंडिपेंडेंट में बना, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो प्रिवेल कर रहा है, जो चल रहा है, उसी इमेजेस को, उसी चीज को लोग पेडागोजी में ला रहे हैं अगर आप ओनली ट्रांसलेशन पर डिपेंड रहते हैं। और मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि भारत में कोई ट्राइबल एकेडमिक काउंसिल नहीं है। भारत सरकार ने आज तक सेंट्रल लेवल पे कोई भी आदिवासी एजुकेशन काउंसिल नहीं बनाया जिसमें हमारे कम्युनिटी के एल्डर्स होंगे और काम करने वाले लोग होंगे और जो तय करेंगे कि क्या पढ़ाया जाएगा।
है ना। तो ये कौन तय कर रहा है कि क्या पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटियों में? कौन तय कर रहा है कि गूगल में क्या दिखाया जाएगा, यूट्यूब में क्या आएगा, फेसबुक में क्या आएगा, इंस्टाग्राम में क्या आएगा? जब हम लोग वहां पे आदिवासी विजडम की बात में, आपको नेट के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय है और 2006 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि नेट की दुनिया में आने वाले टाइम में आदिवासी लोग किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे और क्या नेट पे दिखाया जाएगा। तो जो पूरा जो चीज, जो कंटेंट लाया जा रहा है, वो किस तरह का कंटेंट लाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा पूर्वाग्रह से प्रेरित है, पूरा बायस्ड है और उसमें वो कहीं से भी आदिवासियों के विजडम की को प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको नहीं रखता है। और इसके कारण हम लोग परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं, अब इसको देखते हैं। मैं टेक्निकल सहायता चाहूंगा कि एक बार फिर से गूगल सर्च खोल, यूट्यूब खोलें प्लीज। जी सर। हाँ, यूट्यूब खोले। अब इसमें आप टाइप करें संथाली। स्क्रॉल कीजिए। आप लोग देख रहे हैं जो ये स्क्रॉल हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की इमेजेस है। क्या ये संताल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये विजुअल्स? तो आप देखेंगे कि मोर देन 90% जो विजुअल्स हैं वीडियो के, वो संताल आदिवासी के कल्चर को, विजडम को रिफ्लेक्ट नहीं करते। आदिवासी सर्च मारिए। थैंक यू। हाँ, बंद करिए। तो आपने देखा, हमने 2 कीवर्ड से यूट्यूब में, जो विजुअल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने 2 कीवर्ड से हमने सर्च मारे, संथाली और आदिवासी। और आपने देखा कि दोनों ही सर्च में जो विजुअल्स आए, जो वीडियोस पहले आए, वो कहीं से भी आदिवासियों को रिफ्लेक्ट नहीं करते। आदिवासियों के बारे में जितनी स्टीरियोटाइप इमेजेस हैं, अपमानजनक इमेजेस हैं, वो इमेजेस ही आपको दिखा रहे थे। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर जो मेरा मूल विषय है कि डिजिटाइजिंग आदिवासीडम, क्या आदिवासियत को डिजिटाइज किया जा रहा है? क्योंकि आदिवासी आइडेंटिटी तो उसके बिना संभव नहीं है। अगर आप आदिवासी विजडम को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं बचा रहे हैं, जो आदिवासी की कलेक्टिव मेमोरी है, उसका जो कलेक्टिव नैरेटिव्स है, अगर आप उसको नहीं बचा रहे हैं, उसके जो कलेक्टिव इमेजेस हैं उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जैसे एजुकेशन आने से हमको कोई फायदा नहीं हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से भी हमको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ओरल टाइम से लेके, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि 5000 साल पहले का जो भारत है, वहां से लेके आजाद भारत तक हम देख रहे हैं कि हमारी तो एक ही इमेजेस है, और वो इमेजेस है हम जंगली हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं, हमारी लड़कियां वो जो हैं वो नंगी हैं और सेक्स के लिए वो तैयार हैं। तो ये सारे इमेजेस आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम जो लिसनर है, व्यूअर है, वो कीवर्ड से सर्च मारता है, और कीवर्ड से जो सर्च मारता है तो उसके सामने जो पहले जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, वो उसका मानस उस कम्युनिटी के बारे में, उसकी जो साइकी है, उसका जो मनोविज्ञान है, उसको वो बनाते हैं, उसको वो निर्मित करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को
समझना होगा कि डिजिटल एरा के टाइम में अगर आप आदिवासियत मतलब जो कलेक्टिव मेमोरी और कलेक्टिव नैरेटिव्स है, जो कलेक्टिव इमेजेस हैं, जो कि हम पाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि अंग्रेजी लिटरेचर में एकेडमिक सेक्टर से आप लोग जुड़े हुए हैं ज्यादातर लोग, आईवी मैडम काफी बढ़िया उनका काम है, लेकिन हम लोग क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं जब आदिवासी कल्चर की बात करते हैं? हम कहते हैं फोक टेल्स, हम कहते हैं फोक स्टोरीज, हम कहते हैं फोक सॉन्ग। तो फोक सॉन्ग नॉन ट्राइबल का भी है, आदिवासी का भी है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर दोनों के वर्ल्ड व्यू में काफी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, तो दोनों के लिए एक ही टर्म आप एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सेक्टर में कैसे चला सकते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं जो, जैसे कि मैंने कहा कि जो एक तो संवैधानिक तौर पे आदिवासियों के लिए जो टर्म है और जो एक गैर आदिवासी समाज का टर्म है, तो अभी भारत के लोग 3 तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह के वर्ड्स आप कहें, खास करके आदिवासी लोग अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग खुद को इंडिजिनस कहते हैं और सेंट्रल इंडिया के लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं। तो ये 2 जो टर्म है वो आदिवासियों ने स्ट्रगल करके एस्टैब्लिश किया है। इंडिजिनस इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ की जो परमानेंट फोरम है आदिवासी मैटर्स की, उसने इसको एक्सेप्ट किया है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में आदिवासी लोग खुद को क्या कहते हैं? तो वो खुद को कहते हैं फर्स्ट नेशन, फर्स्ट पीपुल। वो ट्राइब शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एबोरिजिनल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो प्रिमिटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये कॉलोनियल वर्ड्स हैं और ये हमको नीचा दिखाने के लिए है, हमको अपमानित करने के लिए है। तो वे लोग इंग्लिश में इसके लिए अपने इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए वो कहते हैं कि वी आर फर्स्ट नेशन, वी आर फर्स्ट पीपल। और आपको ये समझना होगा कि कॉलोनियल टाइम में आदिवासियों के इलाके को ब्रिटिशर्स क्या कहते थे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आदिवासियों के इलाके को क्या कहते थे? वो आदिवासी इलाकों को कहते थे भील कंट्री, संथाल कंट्री, मुंडा कंट्री, खड़िया कंट्री, ओराव कंट्री कहते थे। और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को वो अलग अलग रियासतों के नाम से पुकारते थे। वो उनको प्रेसिडेंसी कहते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये कहते थे। तो आप गौर करें कि ब्रिटिश टाइम में उन्होंने आपकी जो संप्रभुता है, आपका जो सोवरेनिटी है, उसको एक्सेप्ट किया। इसलिए उन्होंने कहा कि संथाल कम्युनिटी, संथाल कंट्री, मुंडा कंट्री, ट्राइबल कंट्री। इवन जो पहला मोनोग्राफ, जो फेमस मोनोग्राफ है, जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते हैं, एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय, जो रांची में रहते थे, उन्होंने पहला जो मोनोग्राफ लिखा था वो 1912 में पब्लिश हुआ था मुंडा लोगों के ऊपर में। उसका टाइटल क्या है? उसका टाइटल है मुंडाज एंड देयर कंट्री। तो कंट्री आपके इलाके को कहा जाता था और आप लोग अपने को हो कहते थे, मनुष्य कहते थे, इंसान कहते थे। और आज पूरी दुनिया में आदिवासी खुद को फर्स्ट नेशन कह रहे हैं, फर्स्ट पीपल कह रहे हैं। तो ये जो पूरे टर्मिनोलॉजी है उसका एक फिलोसफिकल बेस है, उसका फिलोसफिकल आधार है, उसका सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल आधार है। कोई भी शब्द बिना सोशियो कल्चरल और फिलोसफिकल बैकग्राउंड के कारण वो नहीं बनता है। हर वर्ड्स के पीछे उसकी अपनी एक, उस कम्युनिटी की जो उसको बोलता है, उसकी एक फिलोसफी होती है। तो अगर हम लोग ट्राइब शब्द एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब शब्द एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम लोग जनजाति शब्द एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम नॉन ट्राइबल गेज से आदिवासी पहचान को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको उस तरीके से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम डिजिटल एरा में आदिवासीडम को, आदिवासियों को के डिजिटाइजेशन पे जोर दे रहे हैं और निश्चित तौर पे इस टेक्नोलॉजी का फायदा है, हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं चीजों को। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस में नहीं होगा, अगर ये सिर्फ एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में रहेगा, वो जमीनी स्तर पर प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो इन सारे काम का कोई मतलब नहीं है
पिछले 200 साल से आदिवासियों पर सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आज उसको आइडेंटिटी का क्राइसिस। तो मोर देन 200 इयर्स इंटरनेशनली जो भी आ रहा है आदिवासियों पे स्टडी कर रहा है, उनका लैंग्वेज बचाओ, दे आर इंडेंजर्ड, वो खत्म हो रहे हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं। अरे भाई, इससे ज्यादा बड़ी संख्या गैर आदिवासियों की है, उनकी भाषाओं की है। भोजपुरी खत्म हो रहा है, अवधी खत्म हो रहा है, बंगाली बोलने वालों की संख्या बहुत गिरी है, मराठी बोलने वालों की संख्या बहुत गिरी है, पर उनको कोई नहीं कहता है कि मराठी लैंग्वेज इज इंडेंजर्ड, बंगाली लैंग्वेज इज इंडेंजर्ड, ये कोई नहीं कहता है। आदिवासियों को कोई क्यों कहता है? तो दैट इज द पॉलिटिक्स। इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं अंत में फिर से इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि अगर हमारे कोर्स की पेडागोजी में, कोर्स की डिजाइन में, कंटेंट में, विजुअल्स में, वर्ड्स में, नैरेटिव्स में, ग्राफिक्स में, सिनेमा में, आर्ट में, अगर हम लोग आदिवासिज्म को प्रोपगेट नहीं करेंगे, अगर हम लोग विजडम ऑफ आदिवासीज जो 1940s में जयपाल सिंह मुंडा ने कॉइंड किया और अब जाके पिछले लास्ट 1 डिकेड्स के भीतर इंटरनेशनली इसके पैरेलल जो वर्ड आया है इंडिजिनिटी, तो हमारे जो आदिवासी लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं 40s के एरा के, जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने 40s में कॉइंड किया आदिवासिज्म, विजडम ऑफ आदिवासी। उन्होंने पॉलिटिक्स में, कल्चर में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में आदिवासिज्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि उनको मालूम था कि आदिवासियों का जो वे ऑफ लाइफ है, आदिवासियों का जो जीवन शैली है, आदिवासियों की जो भाषा है, संस्कृति है, उसका जो कोर है, उसका जो वर्ल्ड व्यू है, अगर उसको नहीं बचाएंगे तो आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी। तो अगर आदिवासी विजडम को आप हमारे नैरेटिव्स में, विजुअल नैरेटिव्स में, डिजिटल नैरेटिव्स में, तो अगर आदिवासी विजडम को, विजडम ऑफ आदिवासी को, इंडिजिनिटी को अगर हम लोग नैरेटिव्स के जितने भी मोड्स हैं, जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो सिनेमा, लिटरेचर, एजुकेशन हो, अगर हम उसको वहां जगह नहीं देंगे, उसको हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये इमेजेस बनी रहेगी जो आप लोगों ने डिजिटल एरा के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म गूगल सर्च और यूट्यूब में देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आईवी जी, आपने मुझे इशारा किया और मैं खत्म नहीं कर रहा था, तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सब लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। थोड़ा ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी सम अप किया जाएगा, लेकिन बात है कि हम लोग का डिस्कशन टाइम थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग अभी 12:30 होने वाला है, तो हम लोग 5 मिनट्स तो लगेगा, ये समराइज करेगी कनुप्रिया, उसके बाद हम लोग मे बी 10 मिनट्स दे सकते हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाएगा, मे बी 1-2 क्वेश्चन ही हो पाएगा, है ना। सो वेरी सॉरी, लेकिन काफी देर हो गया टाइम, हम लोग देखते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी। ओके मैम, with the consent of the chair, shall I? या चेयर प्लीज आप अभी टेक ओवर करके फिर इनको हैंड ओवर कर दीजिएगा। ये वंदना जी, वंदना नहीं सॉरी, ये कनुप्रिया सम अप करेगी। हाँ वंदना जी प्लीज आप ये करिए, आप टेक ओवर कर लीजिए प्लीज। एक तो समय को देखते हुए, और दूसरा जो जितनी भी बातें आई हैं, तो उन सब माने तीनों वक्ता जो हमारे थे, उन तीनों वक्ता की जो बातें आई हैं, उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं अपना वक्तव्य बहुत छोटा रखूंगी, ताकि हम जो क्वेश्चन है उस पे या जो डिस्कशन है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें, क्योंकि लगभग सारी चीजें आ गई हैं। मैं भी शायद वही बोलना चाह रही थी जो मेरे तीनों वक्ताओं ने कहा है। निश्चित रूप से ये जो डिजिटल इरा है, इस डिजिटल इरा में हम सभी लोग, खास करके आदिवासी लोग, बहुत चौकस हुए हैं। बहुत चौकस इस मायने में हुए हैं कि हम हमारे बारे में, जैसे अश्विनी जी ने कहा कि हमें लोग क्या कहते थे,
पीरियड में, उसके बाद आज़ादी के बाद, और अभी जब हम लोग संविधान से संचालित हो रहे हैं, निर्देशित हो रहे हैं, उस समय हमें क्या कहा जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा है। तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा जो अपना जो ज़मीनी काम रहा है, उस ज़मीनी काम के दौरान जो मैंने देखा है, इस डिजिटल इरा को देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल सही है कि इसने हम लोगों के का जो अपना काम है उसको बहुत बढ़ाया इस सेंस में है कि हम जो दूसरों पे निर्भर थे कि हमारे बारे में दूसरे लोग बोल रहे हैं, दूसरे लोग लिख रहे हैं, आज हमारे हाथ में एक ऐसा गैजेट्स है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कह पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को दिखा पा रहे हैं। लेकिन सवाल तो वहाँ से शुरू होता है जो एकेडमिक फील्ड से शुरू हम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल जैसे ही हमारे बीच आता है हमारी सारी चीज़ों को बदल देता है। हमारी सारी जो परंपराएं हैं, अपने को देखने का, सोचने का जो तरीका होता है, उन सारी चीज़ों को बदल देता है, और उस बदले हुए नज़रिए के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जो कि इस डिजिटल इरा में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमने अपनी सारी चीज़ों को किनारे कर दिया, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमको दिया गया, उस एजुकेशन सिस्टम में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अभी हमारे सभी लगभग वक्ताओं ने, खास करके गोमती जी ने कहा, गोमती जी कह रही हूँ, मृदुला जी ने बताया काफ़ी अच्छे से कि कैसे कैसे चीज़ें स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इस डिजिटल इरा में हो रही हैं, और अच्छा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बुरा ये है कि जो अश्विनी जी ने कहा कि जो आदिवासियत होना चाहिए, जो हमारी हमको हम बनाता है, मतलब हम आदिवासियों को आदिवासी बनाता है, वो आदिवासियत की कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने जो विजुअल्स देखे हैं, उन विजुअल्स में भी ऐसा कुछ भी हमको नहीं मिलता है। और जो भी अगर हम देखें कि लोगों ने कहना छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है। हमें असभ्य, पिछड़ा, गंवार, देहाती, राक्षस ये कहना छोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं है। ये अभी भी है, अभी भी लोग कहते हैं, कुछ लोग सामने कहते हैं, कुछ पीछे कहते हैं। और अभी जो हम डिजिटल इरा की बात कर रहे हैं, उसके जितने भी फॉर्म्स हैं, उन सभी फॉर्म्स में हम देखें तो जिस तरह से चीजें आती हैं वो कैसी होती हैं, कितनी अपमानजनक होती हैं, या फिर कैसी होती हैं, जो हमको क्या फील कराती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीएम में देखा हम लोगों ने कि हमारे हाथ में चूंकि गैजेट्स है, तो हम सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और उसमें अपनी बात कर रहे हैं। देश दुनिया जिनसे हम नहीं मिल पाते थे, उन सारे लोगों से हम मिल रहे हैं और अपनी बात साझा कर रहे हैं। अभी तुरंत यहाँ ये घटना हुई किसी आदिवासी महिला के साथ, किसी आदिवासी बुजुर्ग के साथ, या किसी आदिवासी व्यक्ति के स्मारक के साथ में छेड़खानी हुई, तुरंत उस पे प्रतिक्रियाएं होने लग रही हैं और लोग गोलबंद हो रहे हैं और अपना प्रतिरोध जता रहे हैं या संगठित हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इन्होंने कहा, सुंदर जी ने कहा कि हम अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं इन चीज़ों के माध्यम से। हम लोगों का भी उदाहरण दिया, खास करके जो हमारा संगठन है उसके बारे में जो उदाहरण दिया कि हम कैसे असुर रेडियो करें, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है। आदिवासी कभी पैसों वाला समाज नहीं रहा, पैसों के पीछे पैसों को जमा करने वाला समाज नहीं रहा, तो उनके पास पूंजी जो आज के समय की जरूरत है वो पूंजी नहीं रही। और सारे लोग कहते हैं पैसा नहीं है तो ये काम कैसे होगा, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश किया वहां पे कि हम बिल्कुल कम संसाधनों में अपनी चीजों को कैसे प्रिजर्व कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने असुर आदिवासी रेडियो जो है वो शुरू किया। ऐसे ही कई सारे कार्यक्रम लगातार हम लोगों के चलते रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ कि हमारा जो आदिवासियत है, आदिवासीपन है, जिस वजह से हम आदिवासी हैं, उस जो हमारा पहचान है, जो हमारा अस्तित्व का सवाल है, वो उसको हम कहीं भी इस डिजिटल इरा में बचा पाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुकाम हम लोग नहीं पा सके हैं जिससे कि हम कह सकें कि आदिवासियत को हम लोगों ने बचाने के लिए ये पहला स्टेप
ये किया है, क्योंकि अभी का वर्कशॉप हम लोगों ने देखा कि जब हमने कहा कि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारा जो वर्कशॉप चलता है आदिवासी डम जिसका जिक्र किया गया था, उसमें लोगों ने जो जिस सामूहिकता की बात कर रहे हैं, वो जिस सामुदायिकता की बात कर रहे हैं, सहजीविता और सहभागिता, जो बड़े बड़े शब्द जिनके रूप में आदिवासियत को किया जाता है, वो सारी चीजों की बात हम जब करते हैं तो वहां पे वंदना जी हम लोग को शॉर्ट करना है प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस प्लीज मैं प्लीज यही प्लीज कहना आप लोग, हम चाहती लोग कंक्लूड करेंगे और ट्रांसलेशन जो हुआ तैयार की है वो करेंगे, उसके बाद हम लोग को डिस्कशन के लिए टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, ओके लेट्स मैं बिल्कुल स्टॉप शॉर्ट इट में नाउ। ये ओके कहूंगी लेट्स स्टॉप इट। कि जितने भी काम हो रहे हैं वो सही हैं, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो भी सही नहीं है, दिख रहे हैं। तो हमारे लोगों को अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हम कैसे अपनी चीजों को ला पाए। तमाम तरह के पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है और उस पर भी काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for elaborating so well on all the points. And I'll give a brief summary of what A.K. Pankaj sir has deliberated in his presentation. So he has basically talked around 2 points. One is the prejudice around the names that are given to the tribals in our country, and he has taken us back to the ancient times where the Adivasis were represented as Asur, Rakshas. And then during the colonial period, the colonial terms were tribe, tribal, primitive, aboriginal. And then later, while the constitution was framed, they were termed as scheduled tribe, and in Hindi it's called Anusuchit Jati, as we know. Still, in the 20th century and 21st century as well, the tribals are termed as Berber, Jangli, Asabha. So he has basically pointed on all these prejudices that the stereotypical image of the Adivasis has not been removed till now, and the mainstream, the non-tribals are continuing with the same image that had been started from long back. So that was his concern regarding the terminology that has been used. And then he also mentioned that the tribals themselves have struggled a lot to establish some terminologies so that they can call themselves. And these terminologies are centered around the philosophical, socio-cultural basis of their particular culture. And he mentioned that in the Northeast, they wish to call, or they call themselves as indigenous. In Central India, they call themselves as Adivasi, and in other parts of the world, they term themselves as First Nation or First People. And then in the later part of his discussion, he opened, it was an eye opener for all of us, as he showed us some of the visuals as well as the terminology on Google as well as YouTube, the largest digital platform, where search engines as we call them. And there we could see that those were not the real representations of the Adivasi culture. And it was mere misrepresentation, if we can call it that way. And so basically he pointed out that digitization and technology is a good way, is a good source of collecting the community knowledge. And but the real idea, the wisdom, the Adivasi wisdom and Adivasiyat has to be collected, has to be preserved through digital media, which is yet to be done according to Sir. And he says that the Adivasis have been, the Adivasi culture has been studied for the past 200 years. Still, there is an identity crisis among the community. So this is a point that needs to be taken care of, that needs to be addressed. And he says that if we should propagate the Adivasi wisdom and Adivasiyat in pedagogy, as well as in digital technologies and digital platforms. Only then will the real collective narratives and the Adivasi wisdom be propagated amongst the people who are not aware of the real Adivasi culture. So thank you, sir, for such an eye-opener and an enlightening lecture. And I would also like to thank our chair, Vandana ma'am. बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से सेशन का संचालन किया. And
आपकी इजाजत हो तो मैं वसुंधरा को भी बुलाना चाहूंगी क्वेश्चन में आंसर राउंड के लिए. इट विल बी अ ब्रीफ सेशन. So, Vasundhara, over to you for the question answer round. Just take 1 or 2 questions. Okay. We have a few questions. सुंदर सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है. आज के समय में जिस तरह से आदिवासी समुदाय के द्वारा लोकगीत को आधुनिक वाद्य यंत्र और राग के साथ सोशल मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है, क्या इसे आने वाले समय में ठेठ लोक संगीत को नुकसान हो सकता है? ये महेंद्र बेसरा जी का क्वेश्चन है. जो मेरा जो मानना है कि जो भी विजुअल्स आप दिखाते हैं या जो भी ओरलिटी जो रहता है, तो अगर हम अपने आदिवासियत को बचा के रखना चाहते हैं तो उसका जो कोर कंटेंट वो ना ही बदले तो अच्छा. लेकिन यदि हम वाद्य यंत्रों और जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं. लेकिन जो सोल ऑफ द सॉन्ग उसमें छेड़छाड़ करना मेरे हिसाब से थोड़ा ये थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाला है. धन्यवाद महेंद्र भाई. अगला जो सवाल है वो एक जनरल क्वेश्चन है. दिस इज अ जनरल क्वेश्चन टू ऑल द पैनलिस्ट. I am curious, what are some aspects of tribal worldview vis-a-vis our ecology that need to be propagated in our time? आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है? पंकज जी. ठीक है पंकज जी. हेलो. और एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाए. मेरा ख्याल है कि जो सवाल ये है कि आदिवासी फिलॉसफी इकोलॉजी को बचाने में कारगर हो सकता है कि कुछ इस तरह का सवाल है ना. हेलो, क्या एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? Vasundhara, unmute yourself. हेलो. Okay. जी सर. Sir, what are the aspects of tribal worldview vis-a-vis our ecology that need to be propagated in our time? ये सबसे बड़ा सवाल है. मुझे लगता है कि हड़प्पा के नष्ट होने के बाद, मतलब करीब 5000 साल बाद फिर से सो कॉल्ड सिविलाइजेशन के सामने ये एक बड़ा सवाल है क्लाइमेट चेंज का. और इसलिए अब लोग इकोलॉजी की बात, उसके प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और इसके लिए वो आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं. तो आदिवासियों को किस लिए देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी समझने की जरूरत है. वो आदिवासियों को आदिवासियत के लिए नहीं देख रहे हैं, वो अपने बचने के लिए देख रहे हैं. और क्लाइमेट चेंज से इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको, उसके सॉल्यूशन के बतौर आदिवासी को देख रहे हैं, आदिवासी वर्ल्ड व्यू को देख रहे हैं. निश्चित तौर पे आदिवासियों के पास एक लंबा ट्रेडिशन है, एक लंबा विजडम है, नॉलेज है उनके पास कि कैसे आप इस धरती पे, इस प्लानेट पे सरवाइव कर सकते हैं. ये सबसे बेटर स्ट्रेटजी आदिवासियों के पास है जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से सीखी. लेकिन सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोगों ने उस चीज को भुला दिया और आज वो फिर आदिवासियों को बचाने के लिए ना आदिवासी की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो अपने मुनाफे को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए आदिवासियों की तरफ, आदिवासी वर्ल्ड व्यू की तरफ देख रहे हैं. तो एक तो मैं कहता हूं कि ये वही प्रेजुडिसनेस है जो आदिवासियों के बारे में है. दूसरा, नो डाउट कि उनके पास वो ज्ञान परंपरा है और आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनली लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आदिवासीडम को प्रोपगेट किया जाए ताकि जो ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड दुनिया है वो वास्तव में एजुकेटेड हो सके
और वो इस प्लानेट पे रहने लायक बन सके। जी। We have few more questions. How many more questions we can take, ma'am? Ma'am, you need to unmute yourself. And अनम्यूट करने बोलिए उनको। ma'am, you need to unmute yourself. We cannot hear you. I did try to unmute. I didn't click it properly. Okay. Okay. Yes. So Ma'am, how what many I'm more saying questions is, we can yes, take? I think we'll have to give a little extra time. So we are now it's 12:45. So maybe we can take it up to 1 o'clock. Okay, 15 Okay. minutes is there. Then we Okay. are going to definitely conclude by 1 o'clock. Okay. Yes, because we have the next session at 3 o'clock. Right. So this question is for Professor Mridula Kindu. The contemporary media culture in the name of accepting and fostering indigenous cultures and languages end up commercializing them by reinforcing and recirculating the negative stereotypes associated with the indigeneity. How do you feel about the cynical side of the digital media? Actually, of course, we have to be very careful with what we are seeing on the digital media, because there are, and where the sources are coming from. So whoever, and so this is what I want to say, that the actually negative, it's all, earlier also there was negativity, and now also in the digital media, as AK Pankaj has said, that there has been negativity in the digital media. So we have to be very cautious, and also to see that where these sources are coming from, and that is what I want to say. This question was from Rajita M. Next question is by Anup. Kindly suggest any source on Adivasiyat or Adivasi philosophy or wisdom. Whom is it directed? You have to say to whom it is Ma'am, directed. they have not, she has not directed to anyone. This is open to, Okay, to open to all. anybody who want to answer this question. हेलो। Yes, sir. हेलो। हाँ, नमस्ते। मुझे लगता है कि आदिवासियत को जानने के लिए किसी मीडिया से बेहतर होगा आप आदिवासी कम्युनिटी के नज़दीक जाएं और उन्हें नज़दीक से जानें और उनसे दोस्ती करें, तभी आदिवासियत को आप सही मायने में सीख पाएंगे। ये किसी मीडिया के थ्रू से आएंगे तो उसमें आपके भुलावे में रहने का बहुत चांसेस है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर पंकज सर। डिजिटल युग में आदिवासियों की मूल पहचान और उनकी फिलॉसफी को सोशल माध्यम के द्वारा किस तरह से प्रस्तुत किया जाए या क्या-क्या तरीका अपनाया जाए ताकि दुनिया के लोगों का नजरिया बदले? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए जो भारत की हिस्टोग्राफी है और पेडागोजी है, दोनों को ठीक करना पड़ेगा, जो एक लंबा काम है। ये कोई 10-20 साल में होने वाला नहीं है। डिजिटल मीडिया पे जो प्रेजेंटेशन है वो आपके समझ से आप उसको तैयार करते हैं, वो चाहे टेक्स्ट के रूप में हो, साउंड के रूप में हो, ग्राफिक्स के रूप में हो। तो आप कैसा टेक्स्ट, कैसा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का साउंड्स लेंगे, किस तरह का ग्राफिक्स लेंगे और किस तरह के विजुअल इमेजेस आप तैयार करेंगे, ऑडियो विजुअल, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं आदिवासियत को। तो जैसे अभी सुंदर मनोज जी ने कहा कि आदिवासियत को अगर आपको समझना है तो आपको आदिवासी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, डीपली इंटरेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, हम लोगों को पढ़ना चाहिए
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत सारी बातें कही हैं जिसको आज तक भारत की हिस्टोग्राफी और पेडागोजी में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो अर्ली राइट अप हैं 20th सेंचुरी के आदिवासियों के जो प्राइमरी सोर्स हैं, कई किताबें पब्लिश्ड हैं। थोड़ा उनको ढूंढने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप उस प्राइमरी सोर्स को, प्राइमरी टेक्स्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको आदिवासियत को समझाने में आपको मदद करेगी। मैं आप लोगों को यहाँ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जयपाल सिंह मुंडा की बायोग्राफी जो मैंने लिखी है, और वो पहली बायोग्राफी है, उसको जरूर पढ़ें। वो आपको आदिवासियत को समझने में मदद करेगा। दूसरी है संविधान सभा में जयपाल, ये बुक भी हिंदी में है और इसी साल पब्लिश हुई है। लेकिन एक किताब जो आदिवासडम, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा के स्पीचेज और उनके आर्टिकल्स हैं, वो अंग्रेजी में है, वो भी पब्लिश्ड है, आप उनको पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में कि जो भी प्रयास अभी आप हो रहे हैं, तो इन सारे प्रयासों को देखते हुए हमने एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, adivasadam.in। इस पे हम बहुत जल्दी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ला रहे हैं और वो हिंदी में ला रहे हैं, ताकि सेंट्रल इंडिया का जो न सिर्फ आदिवासी बल्कि जो अदर स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो डिफरेंट आदिवासी इशूज पर वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स कर सकें अपनी सुविधा के अनुसार। तो adivasadam.in पे भी आप विजिट कर सकते हैं और वो नवंबर से मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। रजिता एम, शी इज आस्किंग द क्वेश्चन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, what alternatives or methods would you suggest for language revitalization or preservation other than digital technology and translation, and to disseminate the indigenous ways of knowing? बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने, जैसा कि सुंदर मनोज जी ने अपने वक्तव्य में जिक्र किया था, बताया था, हम लोगों ने अपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो शुरुआत में कहा गया कि वी आर एनजीओ, वी आर नॉट एनजीओ, हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, उसकी तरफ से हमने रिवाइटलाइजिंग के लिए कोशिश की। और इसके लिए हमने, जैसे हमने जर्नल पब्लिश करने शुरू किए, पम्पलेट हमने छापने शुरू किए, हमने कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। इसके अलावा जो अभी हमने कोविड के जस्ट पहले हमने एक शुरू किया था कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो ऐसा रेडियो नहीं है कि वो ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिट, हम लोग बिल्कुल एक प्रोग्राम कंपाइल करते थे वीकली, और उसको हम लोग जो लोकल हार्ट्स है, जो गांव हैं, उसमें हम लोग उसको साउंड बुक्स के जरिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा, खास करके असुर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो जो पीवीटीज के अंतर्गत आते हैं और नेतरहाट झारखंड में रहते हैं, और उनकी बहुत 10,000 से भी कम संख्या, 6,000 के आसपास है। तो उनके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जो बहुत ही डिजिटल, जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके जरिए आप पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। लोगों को का जो कम्युनल, जो कम्युनिटी नैरेटिव है, जो कलेक्टिव मेमोरीज है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे सुंदर जी और बूढ़ो बास्की ने बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोगों ने इसको जनरल मास तक बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए एक कम्युनिटी असुर कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि जब तक हम उनके नैरेटिव्स को नहीं लाएंगे, तो जो हम यहाँ से ले जाते हैं उनके बीच में, वो सारा चीज गड़बड़ कर देता है। तो हम इस तरह के स्मार्टफोन, ये सबसे बड़ी ताकत है, इससे आप अपनी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप जब शादी में जाते हैं, अपने किसी ट्रेडिशनल फेस्टिवल में जाते हैं, आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए और जस्ट अपलोड इट। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम करेंगे आदिवासी कल्चर, लैंग्वेज, उनको प्रिजर्व करने में, उनको प्रोपगेट करने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनको पॉपुलराइज करने में। थैंक यू। We have another general question. This is by Kavita Singh. Is there any way in which one can pursue studying tribal literature in English when one is not known or acquainted to the original tribal language of a particular tribal community?
इट इज, हाँ बोलिए आप बोलिए। आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सारे इश्यूज पे काम हुए, खास करके लिटरेचर में। विमेंस पर अलग से फोकस हुआ, दलित पे अलग से फोकस हुआ, बैकवर्ड कम्युनिटीज पे अलग से फोकस हुआ, सो कॉल्ड बहुजन। हाँ, तो लेकिन आदिवासी एंथोलॉजी आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा। जीएन रवि ने एक कंपाइल किया है, लेकिन वो बहुत आधा अधूरा है और उसमें बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन तब भी वो पहला एंथोलॉजी उन्होंने कंपाइल किया। तो अभी ये काम होना बाकी है, क्योंकि एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल सेक्टर ने, इंटेलिजेंसिया ने आदिवासियों पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब आदिवासियों की बारी आई तो उन्होंने एलजीबीटी का डिस्कोर्स छेड़ दिया। तो अब इसके बाद वो लोग पेट्स के लिए डिस्कोर्स चलाएंगे, कुत्ते बिल्लियों को कैसे पाला जाए, उनकी क्या मुश्किलें हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आदिवासी डिस्कोर्स शुरू हुआ लिटरेचर में, तो आप देखेंगे कि तुरंत एलजीबीटी आ गया। अब उसके बाद में भैंस पालन पे आएगा, कौओं की क्या समस्या है उस पे आएगा। तो इस तरीके से आदिवासी लिटरेचर पर जो काम शुरू हुआ था, शुरू होने के पहले ही फेज में उसको अदर इश्यूज के द्वारा एकेडमिक और इंटेलिजेंसिया के सेक्टर में उसको रोक दिया गया। ये काम होना बाकी है। कविता सिंह जैसे लोग ये काम कर सकते हैं, जो इंग्लिश के स्कॉलर हैं। आईवी मैडम ने जोहार जर्नल शुरू किया है अपने साथियों के साथ में, तो उसके माध्यम से सुंदर मनोज हेम्ब्रम बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं और उन्होंने अंग्रेजी में काफी ट्रांसलेशन किया है, तो संताली से। तो जो जिस भाषा को जानता है, जो जिस कम्युनिटी का है, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और पेडागोजी को डिजाइन करने के लिए ट्राइबल एजुकेशनल काउंसिल होनी चाहिए, आदिवासी एजुकेशन काउंसिल होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पे, जो ये डिसाइड करेगी कि क्या कंटेंट जाएगा। लेकिन ऐसा कोई अभी तक प्रयास नहीं हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे प्रयास लोग कर रहे हैं, करना चाहिए। और कविता सिंह जैसे लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप जैसे लोग, नए लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो ये काम हो पाएगा। धन्यवाद। इसमें मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट्स कमेटी वगैरह होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो ट्राइबल राइटर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाएं, और हम ये एक्सपर्ट्स कमेटी बुलाते हैं और ऐसे लोगों से एक सिलेबस का डिजाइन फ्रेम करते हैं, ताकि कोशिश करते हैं कि जो जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं। जी बिल्कुल। It's almost 1. I think we should move towards thanking the speakers. Tanupriya? Yeah. Thank you, Vasandra. And as we wrap up this session, I would like to thank our chair for the session, Vandana ma'am. And my sincere thanks to all the three presenters, Mridula ma'am, Sundar sir, and Pankaj sir. And I would also thank our rapporteurs for this session, Arnab Nair and Aditi, for their work. And thank you to all the participants who joined us, and also to those who asked such thoughtful questions. It was actually very engaging for all of us. And now we'll wrap this up, and we'll meet again at 3 p.m. For our fourth session on the same Zoom platform. So do join us. Thank you so much.